Hello, Namaste. How are you all today? Again, here I am with one more tutorial for beginner. But before I start today's tutorial and show you the elements I am going to share with all of you, I am showing you how I draw swirls because Bhavini has requested to show it. You can draw swirls two ways. Either start from inside and keep making circle around, or start from outside, means first make big circle and then keep going inside in circle. Whatever way you feel comfortable or the demand of the situations. But you need to practice to draw perfect swirls, as I had to do lots of practice and still many times my swirls get little out of shape. If my henna work as a magnet. You all might have noticed that when we try to draw close lines with henna, sometimes first line attract the second line and they end up merging if only your henna is very slimy, very stringy. मैं आज का ट्यूटोरियल शुरू करूँ इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं स्वर्ल्स कैसे ड्रॉ करती हूँ. एक्चुअली भाविनी ने रिक्वेस्ट किया था मुझे बताने के लिए. तो स्वर्ल्स आप दो तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. पहली टेक्निक है जिसमें आप सर्कल अंदर से शुरू करके ऊपर लाइक 1 बाय 1 लेयर बनाते जाएं, और दूसरा जो टेक्निक है उसमें पहले एक बाहर का बड़ा सर्कल बना दो, फिर उसके अंदर आप सर्कल में लाइन ड्रॉ करते रहो. जिस तरह से भी आपको कंफर्टेबल लगे स्वर्ल ड्रॉ करने में. और या तो सिचुएशन समटाइम्स ऐसी होती है कि आपको एक ही टेक्निक को यूज़ करके स्वर्ल बनाने पड़ते हैं. तो जो भी सिचुएशन डिमांड हो सिचुएशन की, और या तो जो भी आपकी कंफर्ट स्टाइल हो, आप उस तरह से स्वर्ल बना सकते हैं. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर टुडेज एलिमेंट्स. As usual, today also we have two filler elements. First one is somehow similar to last one. The last one we learned in last tutorial. Today also we are using swirl, but in this one it has thick line at the beginning and then swirl. In last tutorial the filler element we used had a swirl with dot ending. It's only minor difference, but look will be the look you will get is a completely different look. चलिए अब हम देखते हैं कि आज के ट्यूटोरियल में हम कौन से एलिमेंट्स यूज़ करने वाले हैं. जो पहला वाला फिलर एलिमेंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो जो लास्ट टाइम मैंने बताया उससे बड़ा सिमिलर है. लास्ट टाइम जो फिलर एलिमेंट हमने यूज़ किया था उसमें हमने छोटा सा स्वर्ल और बीच में डॉट किया था. लेकिन आज का जो फिलर एलिमेंट है उसमें पहले थोड़ी सी मोटी लाइन होगी और फिर हम स्वर्ल देंगे. अगर इसको हम बराबर के रूप से करेंगे तो थोड़ा सा लाइक पेस्टली वाला लुक इससे आएगा. सेकंड एलिमेंट इज हैंगिंग फ्रिल्स. Usually the frill element we do is connected to baseline, but here it's not connected to baseline, but it's little away from the baseline and it's connected to top line instead. Now as base you can draw any filler elements that we have learned so far, like big empty circle, supported curve, small swirls with dot ending, big swirl, dot layered with lines, like anything you can use as base. As now we are learning more elements, you can layer them more to keep practicing them all the time. और जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो हैंगिंग फ्रिल्स है. आप लोगों को मालूम है जैसे मैंने फ्रिल फ्लावर्स दिखाए थे तो उसमें क्या होता है कि जो हम सर्कल लेते हैं बीच का उसके साथ वो फ्रिल्स कनेक्टेड रहती है, जुड़ी हुई रहती है. लेकिन जो हैंगिंग फ्रिल्स है ना उसमें जो बेस का जो सर्कल या तो आप डॉट विथ लेयर्स या तो स्वर्ल्स जो भी आप बेस की तरह लेना चाहे आप ले सकते हैं. लेकिन फ्रिल्स वो बेस के साथ कनेक्टेड नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ी सी दूर रहेगी और वो टॉप की जो लाइन होगी ना उसके साथ वो कनेक्टेड रहेगी. और जैसे मैंने बताया कि बेस के रूप में आप कोई भी फिलर एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं. और अब हम जब ज़्यादा से ज़्यादा फिलर एलिमेंट्स लर्न कर रहे हैं तो यही सबसे बड़ा लाइक प्लेटफॉर्म है कि हम अपनी फिलर एलिमेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सके, कैसे उसको लेयर करना है वो भी साथ साथ में सीख सके. Our border element is leafy vine. This vine look very bold and beautiful if it's done properly.
watch carefully the technique I'm sharing here. Actually, I have talked about this similar technique in my how to draw dots and leaf tutorial. Link is in description box. But again, I'm describing it here because it's very important. Okay, what happens usually when we want to draw these types of leaf? We start drawing dot little away from baseline. But we forget the most important point is when we press hard to create dot, the dot expand in all directions. And then what happens? It end up touching baseline. Though our intention was to draw leaf away from baseline, giving it small stem, but our miscalculation of spacing to start leaf actually ruins everything. Now you watch what am I doing. If I want leaf around like a half centimeter long, then I start creating dot almost after 2/3 of line. And that way I get 1/3 of stem near baseline and 2/3 length of leaf. Do you get it what I'm saying? Actually, as always, my verbal explanation could be confusing, but a visual explanation is more clear. So carefully watch whatever I am doing there. If you want to experiment or practice, first draw all stem like a parallel lines equally apart and then draw leaf. You will get uniform leafy vine. और आज का जो हमारा बॉर्डर एलिमेंट है वो लीफी वाइन है. ये वाइन एक्चुअली आज बहुत ही पॉपुलर है. सालों से ट्रेडिशनल मेहंदी से लेके आज तक वो बहुत ही पॉपुलर एलिमेंट है. लेकिन ये ड्रॉ करने में मुश्किल ये हो रही है. मैंने जब दूसरे जब लोग मुझे मेहंदी की डिज़ाइन भेजते हैं तो मैंने देखा है कि मिस्टेक कहाँ होती है, क्योंकि वो सेम मिस्टेक मैं भी करती थी कि जब हम लोग स्टेम बनाते हैं मेन डाली से जुड़ी हुई, तो हम थोड़ी ही दूर जाके हमारा डॉट बनाना शुरू कर देते हैं लीफ के लिए, और हम ये भूल जाते हैं कि डॉट जब हम बनाते हैं तो डॉट्स हर एक एरिया में चारों तरफ वो फैलता है, और इसी वजह से हम स्टेम बनाते भी है, डाली बनाते भी है, तो हमारा डॉट फैल के मेन डाली के साथ जुड़ जाता है. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं जो बता रही हूँ आपको, अब ध्यान से उसे देखिए कि पहले आप एक स्टेम छोटी सी बना दीजिए और स्टेम जहाँ पर एंड हो रही है ऑलमोस्ट वही जगह से आप डॉट बनाना शुरू कर दीजिए. तब वो डॉट फैलेगा लेकिन वो मेन डाली के साथ जुड़ेगा नहीं, और आप हर एक पत्तियों को डाली से अलग देख पाएंगी. तो ये जो छोटी सी एक टेक्निक है, छोटी सी एक हमारी मिस्टेक हो जाती है ये वाइन बनाने के टाइम पे. तो अगर आप ये बात ध्यान में रखेंगे तो आपकी भी ये बेल बहुत ही खूबसूरत बनेगी. नाउ अबाउट अवर टुडेज चेक्स एलिमेंट, or let's say grid and tile element. We must use word that famous people are using. So I have come to know nowadays people are using grid and tile design for all this checks design. So let's use that word. Okay, so our grid is done with zigzag line. This line look easy, but actually it's very good practice to improve your hand control over your henna cone. So keep practicing this line and create grid using this line. And inside grid you can use 4 connected dots or corner dots or dot in center, anything. As now we are learning more elements, so we have more ideas for all these elements, right? और अब आज का हमारा चेक्स का ग्रिड और टाइल का एलिमेंट, उसके लिए हमने ज़्यादातर हम स्ट्रेट लाइन से ग्रिड बनाते हैं, चेक्स बनाते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं. लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम जिगजैग लाइन लेंगे. ये जिगजैग लाइन वैसे तो जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ फटाफट से हो जाएगी, लेकिन ये बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस है एक्चुअली. हमारी मेहंदी के कोन को हम कैसे कंट्रोल करते हैं और साथ में फ्लो करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं. तो आप जिगजैग लाइन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कीजिए और उसी जिगजैग लाइन से आज हम बॉक्स बनाएंगे.
अब बॉक्स के अंदर आप चाहे तो 4 डॉट्स को कनेक्ट करके कर सकते हैं, या तो कॉर्नर पे डॉट को बना सकते हैं या सेंटर में डॉट को बना सकते हैं। आप जैसे चाहे वैसे इस बॉक्सेस को आप डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अब हम इतने सारे फिलर एलिमेंट्स सीख ही रहे हैं, तो हम जो भी सीखे हुए फिलर एलिमेंट्स हैं उसका इस्तेमाल करके, प्रैक्टिस करके कुछ नया हम हर वक्त कर सकते हैं। इन लास्ट वीडियो, okay, if you have not watched yet, link is in description box. Yeah, so in our last video we used curve as a motif element, and today we will use simple paisleys in all shapes and sizes. Now I had already created one video that teach all the techniques and details regarding paisleys, so please do watch that if you want to learn how to draw paisleys, or if you have any doubts about this element, and link is in description box. जैसे कि हमारे पिछले ट्यूटोरियल में, अगर किसी ने भी अगर वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ देख लीजिए, आपको बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा। हाँ, तो पिछले ट्यूटोरियल में मैंने कर्व लिया था, जैसे हम राउंड पेटल वगैरह लिया था मोटिफ बनाने के लिए। तो आज हम पेस्ली लेंगे, सिंपल वाली, ऑल साइज़ में, बड़ी छोटी मोटी जैसी भी हो वैसी हम पेस्ली लेंगे। और अगर आपको पेस्ली ड्रॉ करने की टेक्निक सीखनी हो या इसके बारे में कुछ भी और कुछ सीखना हो, तो मैंने पहले से ही उसके ऊपर, पेस्ली के ऊपर स्पेशल एक वीडियो बनाया हुआ है, और लिंक एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवर एम्बलिशमेंट एलिमेंट, एंड दैट इज टीयर ड्रॉप शेप्स इन ऑल साइजेस एंड शेप्स। अब लास्ट नॉट बट द लीस्ट, हमारा जो एम्बलिशमेंट एलिमेंट है, जो डेकोरेशन का एलिमेंट है, वो है टीयर ड्रॉप शेप्स। और वो भी आप हर कोई साइज़ में, शेप्स में बना सकते हैं, और इसके लिए जो पर्टिकुलर टेक्निक है वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिखा दी है। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज डिज़ाइन। रिमेंबर वन थिंग, आई एम ड्राइंग डिज़ाइन impromptu. I have not planned anything. I prefer to do that so I can explain different options of the same designs. It's like walking through the design. We have already used straight border, angular border, so I was looking for something different today. As nowadays borders are dominating all the mehndi designs. If you see like all latest fusion style mehndi, you will see borders and borders layer one upon another. So I thought, let's try something different. It's not different, but actually let's go back to our traditional style, old style, with a touch of Rajwadi style. I started with frill flower on top of big swirl. Big swirl because it's base of the design and will look accentuated and important when someone will see our design. Now for variety, I used our leafy elements for our vines, from our vines on top of our frill flower, so you can see another use of that element. चलो, तो फिर हम आज की डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं जब भी ये ट्यूटोरियल बनाती हूँ तो मैं कभी भी अपनी डिज़ाइन पहले से प्लान नहीं करती हूँ। क्योंकि मैं ऐसा क्यों करती हूँ, क्योंकि जब मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ डिज़ाइन डिस्कस करके आगे बढ़ सकूँ, तो आप लोगों को भी आइडिया मिले कि डिज़ाइन कैसे हम बना सकते हैं, अपनी खुद की डिज़ाइन हम कैसे बना सकते हैं। ओके, तो हमने पहले 2 ट्यूटोरियल में जैसे स्ट्रेट बॉर्डर की थी, एंगुलर त्रिकोणिया वाली बॉर्डर की थी, तो मुझे आज लगा कि चलो कुछ डिफरेंट करते हैं। क्योंकि आजकल की जितनी भी मेहंदी की डिज़ाइन में देख रही हूँ तो बॉर्डर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। कुछ डिज़ाइन तो ऐसी होती है कि बस बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बना के पूरा डिज़ाइन बना दिया जाता है। तो मुझे लगा कि चलो हम कुछ पुराना वाला स्टाइल वापस लेके आते हैं, जो रजवाड़ी स्टाइल है, जिसमें मोटिफ होते थे, लेयर का एलिमेंट्स यूज़ किए जाते थे, लेयर फिलर एलिमेंट्स यूज़ किए जाते थे। तो आज की डिज़ाइन में मैं कुछ वही अप्रोच रखना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैंने बेस डिज़ाइन के तौर पे ये फ्रिल वाला जो फ्लावर है वो इस्तेमाल किया है।
और आप देख सकते हैं कि फ्रिल फ्लावर के लिए जो मैंने सेंटर बनाया है वो थोड़ा मोटा स्वर्ल लिया है, क्योंकि ये हमारा बेस डिज़ाइन है तो उसको थोड़ा तो उभर के आना चाहिए। तो जब बड़ा स्वर्ल लेते हैं तो वो फ्लावर डेफिनेटली बड़ा हो जाएगा। और उस फ्रिल फ्लावर के ऊपर मैंने आज की जो हमारी वाइन की जो बेल की जो पत्तियां हैं उसका इस्तेमाल किया है। तो इससे अभी आपको पता चले कि इन पत्तियों को आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे अलग अलग रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। Keeping that flower in center, I drew curve lines creating one type of border for our base design. And as a stopper designs, I used our teardrop shapes. I used our first filler element swirl with thick beginning for our border. I decorated these border lines with our last tutorial's border element. और जब हमारा ये फ्लावर बन के तैयार हो गया तो मैंने कर्व लाइन ऐसे ही ड्रॉ करके एक थोड़ा लाइक कफ जैसा बेंगल जैसा लुक देने के लिए उसको कर्व बॉर्डर जैसा बना दिया। और फिर क्या किया मैंने कि वो जो हमने टीयर ड्रॉप शेप्स लिए हैं उससे वो स्टॉपर डिज़ाइन बना दी। जो हम डिज़ाइन को एंड करने के लिए हमेशा ऐसे डेकोरेशन वाले स्टॉपर डिज़ाइन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आज मैंने वो टीयर लीफ का टीयर ड्रॉप डिज़ाइन का इस्तेमाल कर लिया। और जो फ्लावर के आजू बाजू का जो बॉर्डर जैसा एरिया है उसके अंदर मैंने आज की हमारी जो पहली फिलर एलिमेंट है मोटी लाइन वाला स्वर्ल उसका इस्तेमाल किया। अब जब हमारा ये कफ ये बैंगल जैसा बॉर्डर तैयार है तो उसको उस डिज़ाइन को आगे बढ़ाने के लिए मैंने सोचा कि चलो हमने जो पिछले ट्यूटोरियल में फ्रिल वाला और राउंड पेटल वाला जो बॉर्डर एलिमेंट किया था इसका इस्तेमाल कर लेते तो थोड़ा सा डिज़ाइन को एक बेस मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर इस डिज़ाइन को आगे बढ़ाना है तो आप चाहे तो बॉर्डर्स ले सकते हैं, लाइक कोई भी एंगल से बॉर्डर ले सकते हैं, या तो आप वो गल्फ फ्लावर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि जब हम पेस्टली यूज़ कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम इस पॉइंट पे जो कॉर्नर हमें मिल रहा है दो लाइन का जो जोड़ है वहाँ पे जो कॉर्नर मिल रहा है वहाँ से हम पेस्टली का एक के ऊपर एक पेस्टली डाल के भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बस वही आइडिया को आगे ले जाके मैंने वो वहाँ पे पेस्टली और लीफ का डिज़ाइन बनाया। Now our base design is ready. We can progress this design with another border like cross border or anything. But as I said earlier, I am not in mood to use any border today. So let's see what can we do. We can draw big curve style flower near that corner where two lines meet. But I decided to use our today's hero element, that is our paisley instead. So I stacked paisley, teardrop shape and leaf and decorated leaf with bold leaf shape while I used layer filler elements for paisley. All the filler elements I will use for stacking onto like each other are already be shown in our last tutorial videos. That means I am not using any new elements here. Only the way I am using them is different. Okay, after stacking up our paisley, I was little confused how to take this design forward. So I thought let's use our grid and tile element. Because I could have used round petals, borders or gulf style flowers instead, but I wanted contrast look. Contrast in sense our paisley has delicate intricate look where grid will have little spacing and bold look, so it gives balance to our design. And to use our grid and tile element I use border and I decorated border with frill and swirl, so another use of our swirl element. फिर और आगे डिज़ाइन को बढ़ाने के लिए थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न लग रहा था कि मैं क्या करूँ, बॉर्डर बनाऊँ या छोटा सा फिलर एलिमेंट डाल दूँ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, पेस्टली का डिज़ाइन थोड़ा डेलिकेट है, तो हम अगर उसको बॉक्स का हमारा जो आज का चेक्स एलिमेंट है वो देंगे तो अच्छा सा एक कॉन्ट्रास्ट बैलेंस में हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने हमारा जो आज का चेक्स एलिमेंट है वो वहाँ पे इस्तेमाल करना ज़्यादा मुनासिब समझा।
और वो चेक्स के लिए जो मैंने एक बॉर्डर एलिमेंट यूज़ किया है, तो आप देख सकते हैं मैंने वहाँ पे फ्रिल और आज का जो स्वर्ल एलिमेंट है वो इस्तेमाल किया है। मैं हर एक चीज़ आपको इसलिए इतने डिटेल में बताती हूँ तो जैसे आपको आइडिया मिलेगा कि आप ऐसे स्वर्ल एलिमेंट को इस्तेमाल कर बॉर्डर के ऊपर भी कर सकते हैं। तो जब इस तरह से आपका ध्यान जाएगा तो आपको पता चलेगा कि हर एक एलिमेंट आप कितने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और हर वक्त कुछ नया बना सकते हैं। As I said, I wanted to do little traditional design, so I decided to draw Rajwadi style motif here, and for that I used semicircle as base, and around it I used round petals and paisleys to create entire center motif. Now this is going to be spotlight of our design. I wanted to use our border element, that is our leafy vine, and I had few options, but I used it near our main hero, our paisley. Actually I would have drawn it after completing my motif, then I would had enough space to keep my hand while filling that motif with filler element. But anyway, as I said, our center motif is our hero of this design, and that's why I filled all the petals with different filler elements that we have learned so far. For semicircle I used traditional old-fashioned checks, and trust me, these checks are still very popular because with color they look awesome, just enhance the beauty of entire design. Then I used our today's hanging frill element for first petal, dot with layered lines for second petal, circle with frill flowers, zigzag lines and swirl for big paisley, rounded swirls for small paisley, swirl with dot with last big petals, while for other small petals I used only straight lines and dot leaf. And last paisley I fill with layered filler elements. And yeah, don't forget to give outline to our center spotlight motif. It's very important. अब डिज़ाइन को आगे बढ़ाने के लिए जैसे मैंने कहा आप बॉर्डर को लेयर कर सकते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा रजवाड़ी टच इस डिज़ाइन को दूंगी। तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो ना हम राउंड पेटल्स, पेस्ली और सर्कल वो सब इस्तेमाल करके टिपिकल जो ट्रेडिशनल मोटिफ होता है वो हम बनाते हैं। तो इसलिए मैंने सेमी सर्कल यूज़ किया और उसके ऊपर पेस्ली और राउंड पेटल्स स्टैक करके एक अच्छा सा डेलिकेट इंट्रिकेट मोटिफ बना दिया जो हमारे डिज़ाइन का हीरो होगा, सेंटर पार्ट होगा। और इसीलिए मैंने उसको एक और आउटलाइन देके फोकस दे दिया है। और फिर मुझे वो वाइन भी इस्तेमाल करनी थी जो आज का हमारा बॉर्डर एलिमेंट है, तो मैंने उसको ही मोटिफ के साइड पे लगा दिया। एक्चुअली मुझे वो वाइन बाद में ड्रॉ करना था, जब मेरा मोटिफ के अंदर पूरा भरावन का डिज़ाइन हो जाता, उसके बाद अगर मैं करती ये वाइन तो मुझे अपना हाथ रखने का थोड़ा स्पेस मिल जाता। बट एनीवेज चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं हर एक पेटल को मैंने डिफरेंट फिलर एलिमेंट जो हमने आज के वीडियो में भी सीखे हैं, जो पिछले वीडियोस में भी सीखे हैं, सबको मिलाकर मैंने हर एक पत्तियों को अच्छे से डेकोरेट कर दिया। एक बात आप ज़रूर ध्यान में रखें, पूरा डिज़ाइन बनाने से पहले हर एक फिलर एलिमेंट को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एक स्मॉल एलिमेंट को परफेक्ट वे से आप अलग से प्रैक्टिस करके जब साथ में डिज़ाइन में यूज़ करेंगे, उसके बाद अगर आप डिज़ाइन में यूज़ करेंगी तो आप देखेंगे कि आपकी डिज़ाइन कितनी नीट एंड क्लीन हो रही है। और जैसे मैंने आगे भी आपको बताया कि जो आज का डिज़ाइन है मैं लेयर्ड एलिमेंट से करना चाहती हूँ, तो इसीलिए जो मोटिफ के आजू बाजू का खाली एरिया है, अगर मैं चाहूँ तो हमारे सिंपल फिलर एलिमेंट से पूरा भर सकती हूँ, या तो लाइक बेल बना सकती हूँ, बॉर्डर एलिमेंट दे सकती हूँ, लेकिन आज मैं ओल्ड वे, ट्रेडिशनल वे इस डिज़ाइन को करना चाहती हूँ, ताकि आपको पता चले कि और आप सीख भी पाएँ कि किस तरह से हर एक फिलर एलिमेंट को एक के ऊपर एक लेयर करके जब हम लेयर एलिमेंट्स बनाते हैं तो वो कितना खूबसूरत, बारीक और बहुत ही ट्रेडिशनल लुक लगेगा उसमें। क्योंकि ये जब लेयर डिज़ाइन हम बनाते हैं भरावन की,
वो वैसे ही एक के ऊपर एक डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन को लेयर करके आप नहीं कर सकते। अगर आप उसका आपको उसके कॉन्ट्रास्ट को ध्यान में रख के कौन सी डिज़ाइन किस डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट करती है, वो सब ध्यान में रख के अगर आप ये लेयर डिज़ाइन बनाएंगी तो आप देखना वो इतना खूबसूरत लगेगा। और मेरा ये पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मैं जब सालों पहले डिज़ाइन लगाना सीखी थी तो यही स्टाइल फैशन में था। तो मैं अभी भी कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह से लेयर्ड एलिमेंट से पूरा आजू बाजू का डिज़ाइन भर दूँ। क्योंकि क्या होता है कि हमारे इस डिज़ाइन में जैसे मोटिव मेन इम्पोर्टेंट डिज़ाइन है और बाजू का जो साइड का ये भरावन का डिज़ाइन है वो सेकेंडरी डिज़ाइन है। तो वो मेन मोटिव और इस सेकेंडरी डिज़ाइन को बैलेंस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये हमारा लेयर्ड एलिमेंट बराबर से नहीं होगा तो क्या होगा कि पूरा जो शिफ्ट है, जो लुक का जो है वो शिफ्ट हो जाएगा सेकेंडरी एलिमेंट जो भरावन का डिज़ाइन है उसके ऊपर, और मोटिव पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा। तो उसको भी यहाँ पे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। और इस तरह से लेयर एलिमेंट बनाने से क्या होगा, आपका भी जो फिलर एलिमेंट है उसकी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे इस तरह से। सो इसीलिए मैंने आज थोड़ा डिफरेंट अप्रोच करके यहाँ पे लेयर्ड एलिमेंट मैंने यूज़ किया हुआ है। तो आप हो सके, अगर आपको डायरेक्टली मेहंदी से कंफर्टेबल ना लगे तो हो सके तो आप पेंसिल और पेपर से भी पूरा ये डिज़ाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो होप एज ऑलवेज आपको ये ट्यूटोरियल भी अच्छा लगा होगा और इससे भी आपको सीखने में बहुत कुछ मदद मिली होगी। और मैं इस तरह के ट्यूटोरियल मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा मेरा स्केड्यूल अभी बहुत पैक है, तो थोड़े स्लोली ऐसे ट्यूटोरियल आएंगे, लेकिन आप अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेजते रहिए क्योंकि मैं वो नोट डाउन करती हूँ और जब भी मुझे टाइम मिलता है और सिचुएशन ऐसे क्रिएट होती है तो मैं उस रिक्वेस्ट को एक्चुअली पूरा करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो तब तक जब तक मेरा नया वीडियो नहीं आ जाता वापस, लाइक मैं बना नहीं देती, आप इस डिज़ाइन को प्रैक्टिस करते रहिए और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी मुझे लिखते रहिए। Now rest of the empty area, if you want, you can use borders, circles, grid, all types of element, but I decided to go with layered filler elements. And watch how am I layering one after another filler elements on top of each other. And again I'm using all the elements that we have learned so far. These layered filler elements bring out the delicate and intricate look of entire design if done properly. It's very important and you need lots of practice with layered element. I have struggled a lot with them initially because here it should balance with our main motif. If not done properly, they can change the entire focus of the design. It can actually spoil the look of the design, and that's why whenever you use layered filler element, always try to be extra careful with neatness and use of them, like which element you are using on top of which layer. The combination should be perfect. Okay, with that I come to the end of this tutorial, and like always I hope you might have learned something from this tutorial. These types of designs are very near to my heart, as I have always done these types of design, so they are my forte. And everyone has their own comfort style, and if you are new learner, they give ample of time as nothing happen overnight. People spend lifelong practicing and perfecting their art. Now choice is yours. If you want to excel, then keep practicing one style first and improve in that. Give your 100% to that style. Keep doing it over and over again, and once you feel contented with the result, then start exploring. First need strong base, then rest could be learned easily. So keep up. If you need, you can practice design with paper and pencil, then practice only elements. Once you get perfect elements, perfect lines, then do entire design. So till you are practicing this design, I take your leave so I can plan next video. Thank you very much for watching my videos, और सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक और कमेंट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
Very sure. Once you understand the basic of it, you can create various style of this same instrument. और लास्ट की जो शहनाई बनाई है वो एक्चुअली बारात में होती है, जब वो बारात पूरी निकलती है और उसके साथ म्यूज़िकल